Good morning. Good morning dear students. कैसी चल रही है पढ़ाई? रोज वही क्वेश्चन है ना, क्या करें? चलो पढ़ाई शुरू करें आगे, और बातें तो जब मिलेंगे तब कर लेंगे थोड़ी सही, है ना? ओके, तो टुडे we'll move towards the structure of न्यूक्लियोटाइड, जिसका हम वेट कर रहे हैं, जिसके पीछे हम पढ़े हैं 3-4 लेक्चर से, पर वो भी वो बन नहीं रहा है. फाइनली आज हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बना के ही रहेंगे, राइट? सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व्स मेनली 3 components. That is, the first one is, we know that is pentose sugar, right? We know that if it is the structure of DNA, then it involves which sugar? Deoxyribose sugar. And if it is the structure of RNA, then which sugar is involved? Ribose sugar. These are pentose sugar, 5-carbon sugar. So in the structure of DNA, it involves deoxyribose sugar, and in the structure of RNA, it involves ribose sugar. Second, we know that nitrogen base, we know there are 2 types, purine and pyrimidine. Example of pyrimidine are cut, cytosine, thymine and uracil. And example of purine are Ag, that is adenine and guanine. We know that in the structure of DNA it involves either A or G or C or T, while in the structure of RNA it involves A or G or C or U. So keep in mind that in the structure of DNA uracil is not present, and in the structure of RNA thymine is not present, right? DNA को uracil पसंद नहीं, RNA को thymine पसंद नहीं. जैसे घर में किसी को पानी पूरी पसंद नहीं तो मम्मी पापा को पिज्जा पसंद नहीं, पर हमें तो दोनों पसंद है. वैसे ही DNA को thymine पसंद है तो RNA को uracil पसंद है. तो ये चीज खास ध्यान रखना, बिकॉज उसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब गलती से भी डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या नहीं लिखना? यूरेसिल नहीं लिखना. और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या नहीं लिखना? थाइमिन नहीं लिखना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड. देखो पहले बनता है साइड, फिर बनता है टाइड, ठीक है? तो पेंटोस शुगर, दिस इज पेंटोस शुगर. चलो, पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज है? Any change between these two structure? Yes. The first one, it is the structure of ribose, and the second one, it is the structure of deoxyribose. कैसे पता चला? मैम सिंपल है. सेकंड नंबर, if it is if it is HOH, then ribose, and एक oxygen come, that is deoxyribose, right? So this is the structure of ribose sugar and this is the structure of deoxyribose. How? तो जो second number carbon है, you know, this is first carbon, second, third, fourth and fifth. First, second, third, fourth and fifth, right? तो second number पे if it is OH, then it is the structure of ribose, and at second position if it is only H, one oxygen is removed, then this is the
sugar. Which one? Deoxyribose. And we know that in the structure of DNA, which sugar is involved? Deoxyribose. And in the structure of RNA, which sugar is involved? Ribose. Chalo, next step. So with pentose sugar, at first carbon, that nitrogen base unite. फर्स्ट कार्बन पे कौन यूनाइट हो रहा है? नाइट्रोजन बेस. By which bond? Most important, that bond is known as a N-glycosidic bond. बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है. 2020 में ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि that phosphate, with pentose sugar, that nitrogen base unite by which bond? So that bond is N-glycosidic bond. And whatever the structure formed is known as a nucleoside. ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है? इजी है ना? ओके. Now, so you can understand this is the structure of ribonucleoside, and this is the structure of deoxyribonucleoside. Got it? So most important thing, what is nucleoside? So nucleoside is equal to pentose sugar plus nitrogen base. Right? At which position? First carbon. Nitrogen base unite with sugar at which position or which carbon? At first carbon. By which bond? N-glycosidic bond. And whatever the structure is formed is known as a nucleoside. If the sugar is ribose, then it is the structure of ribonucleoside. And if it is the structure of deoxyribose, मतलब कि sugar है, DNA का structure है, then the structure is formed deoxyribonucleoside. ठीक है? तो keep in mind what is nucleoside. Pentose sugar plus nitrogen base is equal to nucleoside. If the sugar is ribose, then it is the structure of ribonucleoside, that is RNA. And if the sugar is deoxyribose, then it is known as a deoxyribonucleoside, and it must be the structure of DNA. शुगर कौन से उसे पता चल जाएगा कि भाई ये डीएनए का स्ट्रक्चर है कि आरएनए का. सेकंड थिंग, whenever it is the structure of ribonucleoside, the nitrogen base must be either A or G or C or U. यहां पे थाइमिन कभी भी नहीं होगा. ये चार में से कोई एक नाइट्रोजन बेस होगा, बट थाइमिन कभी भी नहीं होगा. सेम वे यहां पे A और G और C और T, whenever it is the structure of DNA, it will never have uracil. तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है. Got it? Clear? Is it okay? So this is about nucleoside. So keep in mind nucleoside is equal to pentose sugar plus nitrogen base. ठीक है? अच्छा, अब जैसे ये एडेनाइन है उसमें नाइट्रोजन बेस, तो उसको क्या बोलेंगे? एडेनोसाइन. दिस इज अबाउट न्यूक्लियोसाइड. ये किसके लिए लिखा है? अबाउट न्यूक्लियोसाइड. अगर एडेनाइन है तो एडेनोसाइन, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है तो ग्वानोसाइन, थाइमिन है तो थाइमिडीन, यूरेसिल है तो यूरेडिन, सी है नाइट्रोजन बेस तो साइटिडीन. थाइमिडीन किसमें होता है? सिर्फ डीएनए. यूरिन किसमें होता है? ओनली इन आरएनए. और ये दोनों में होता है डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए. दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डीएनए एंड आरएनए. क्लियर? गॉट इट? So this is about nucleoside.
पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एट फर्स्ट पोजीशन, nitrogen base Y and glycosidic bond. So this is about nucleoside. Now our aim, जिसकी हम वेट कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है? तो पेंटो शुगर first position nitrogen base by which bond? And glycosidic bond. And at fifth position phosphorus unite by ester bond. So whatever the structure is formed is known as a न्यूक्लियोटाइड. समझ में आया? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इफ द शुगर इज ribose, then it will be the structure of ribonucleotide. And if the sugar is deoxyribose, then the structure will form known as a deoxyribonucleotide. ठीक है? तो चलो मुझे एक्सप्लेन करो कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है और ये स्ट्रक्चर कौन सा है. चलो कुछ भी मैं हिंट नहीं दे रही हूं. मैंने आपको दो डिफरेंट दिए हैं शुगर. अब स्ट्रक्चर देख के पहचानो और बोलो कि कौन सी शुगर है और किसका स्ट्रक्चर होगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस. पता चला सेकंड नंबर से. एंड दिस इज डीऑक्सी ठीक है ना. सेकंड नंबर पे HOH तो पता चल जाएगा कि दिस इज राइबोस शुगर, पेंटो शुगर. एंड इफ इट इज HH देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द शुगर. बट विच शुगर? डीऑक्सीराइबोस. राइट. सो राइबोन्यूक्लियोटाइड, deoxyribonucleotide. So this is about nucleotide. In nucleotide, two bonds are involved: glycosidic bond and ester bond. ठीक है. तो याद रहेगा, पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड और फिर बनता है न्यूक्लियोटाइड. तो चलो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि अगर मेरे को ये न्यूक्लियोटाइड को और शॉर्ट में लिखना है तो इज इट पॉसिबल? सोचो. चलो सोचो सोचो. आ गया? अच्छा, हिंट दे रही हूं. चलो, न्यूक्लियोसाइड का कुछ रिलेशन है उसके साथ. चलो मैं ही बोल देती हूं. चलो, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट. करेक्ट. चलो, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मीन्स व्हाट? करेक्ट. इट इज nucleotide. So simply we can say that nucleotide plus phosphate is equal to nucleoside. So nucleoside plus phosphorus, that is nucleotide. ठीक है. पहले क्या बनता है? साइड. और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ऐड कर दे
तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड. सो रिमेंबर, पेंटोस शुगर, first position nitrogen base by glycosidic bond, whatever the structure is formed is known as a nucleoside. Nucleoside के structure में fifth position phosphorus by which bond? Ester bond, and the structure formed is known as a nucleotide. Got it? So all clear about nucleoside and tide? This is most important. Even same topic will involve in genetics in standard 12. राइट. सो जैसे हमने न्यूक्लियोसाइड का नाम देख लिया कि भाई कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा तो उसका नाम क्या होगा. सेम वे लेट्स सी न्यूक्लियोटाइड. तो दीज आर न्यूक्लियोटाइड. अगर नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है तो एडिनिलिक एसिड, ग्वानिन है तो ग्वानिडिलिक एसिड. अच्छा, अगेन सेम डीएनए प्लस आरएनए दोनों में रहेगा. ग्वानिलिक एसिड सेम डीएनए प्लस आरएनए. थाइमिडिलिक एसिड किसके स्ट्रक्चर में होगा? सिर्फ डीएनए. यूरिडिलिक एसिड ओनली आरएनए. और साइटिडिलिक एसिड साइटोसिन दोनों के स्ट्रक्चर में होता है डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. So this is nucleoside and nucleotide. ठीक है. तो देखो कितनी बार बोला है, भूलना नहीं कि डीएनए देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है? थाइमीन, यूरेसिल नहीं होता है. इन आरएनए स्ट्रक्चर इट इन्वॉल्व्स यूरेसिल, नो थाइमीन. राइट. सो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर plus nitrogen base plus phosphate. Got it? And nucleotide means pentose sugar plus nitrogen base. So nucleotide, we can say that nucleotide is equal to nucleoside plus phosphate. Got it? Okay. I think समझ में आया होगा. वैसे थोड़ा इजी है, थोड़ा ध्यान रखना है. और मैंने आपको पूरा क्लियर अच्छे से चार्ट बना के भी दिया है कि आप जिससे इजीली याद करो. आपकी बुक में सिर्फ नाम दिए, पर मैंने आपको टोटल एकदम अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. राइट. न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस यूनाइट होता है तो कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे. कौन सा बॉन्ड रचता है, बनाते हैं? तो एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है? फॉस्फोरस. कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड. राइट. सो दिस इज वेरी क्लियर हाउ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म एंड हाउ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म. राइट. न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में अगर फॉस्फोरस ऐड करो तो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. बट कीप इन माइंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड. तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरस. इफ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देन द शुगर इज राइबोस. If it is the structure of DNA, then the sugar must be deoxyribose. पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस यूनाइट होता है कौन से नंबर के कार्बन पे? तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर. बाय विच बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. फॉस्फोरस कहां पे ज्वाइंट होता है? फिफ्थ कार्बन. बाय विच बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड. राइट. डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता है? यूरेसिल. क्या होता है? थाइमीन. आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? यूरेसिल. क्या नहीं होता? थाइमीन. ठीक है. तो फाइनली अपना डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए, न्यूक्लियोटाइड. बस अब न्यूक्लियोटाइड आ गया है. एक न्यूक्लियोटाइड वैसे दूसरे न्यूक्लियोटाइड को यूनाइट करेंगे तो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड. और सेम वे में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनाइट करेंगे तो क्या बनेगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड. राइट. बट वो स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े अलग तरह से बॉन्ड आते हैं,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन हो तो कैसे यूनाइट होती है, डबल चेन कैसे यूनाइट होती है, तो वो थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले आपको ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो आना जरूरी है। सेकंड थिंग ये क्लियर होना चाहिए कि ये अगर राइबोज है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, एंड इफ द शुगर इज डीऑक्सीराइबोज then the structure must be of DNA, right? In DNA again, बोलो, थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। मैडम पक्का आ गया, बट बच्चा फिर भी आप गलती करोगे, वी नो दैट, ठीक है। सो ये हो गई अपनी बात न्यूक्लियोटाइड की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी अपने नाम कंफर्मेशन नहीं करवाए, तो प्लीज ऑफिस में कांटेक्ट करके नाम कंप्लीट करवाओ, क्योंकि अब हमारा ये ऑफिशियल लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो अपना ग्रुप है वो हम उसका आपके डाउट्स भी क्लियर करवा सके, राइट। अभी हम फिर मे बी कि थोड़े ऑनलाइन भी क्लासेस ले, तो जिसके नाम कंफर्म हुए हैं, राइट, उसकी फिर हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, राइट। और तब तक ये प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये वापस नहीं चलाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन क्या है, लंबाने वाला है, तो अगस्त तक हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, राइट, क्योंकि नेक्स्ट नीट लेट नहीं जाएगी 100%, ठीक है। ये साल भले थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट वो कवर करना पड़ेगा, तो हमें कंपलसरी ऐसे ही करना है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स को भी पता नहीं है तो उनको भी इंफॉर्मेशन दे दो, उनको भी ये लिंक शेयर करो, ठीक है, और बोलो फटाफट अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा दे और एडमिशन कंफर्म करवाए, ठीक है। और आप प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट तो करो यार। मैं तो इतना सारा लिखती हूँ, इतना सारा बोलती हूँ, तो आपको तो बोलना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना ही है। तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।